ہمارے یہاں اجتماع میں پہنچنا اللہ کی توفیق سے ہوا ہے، اور ہم سب یہاں پر جمع ہوئے اپنی اصلاح اور اپنی تربیت کے لیے۔ اجتماع کوئی میلہ نہیں ہے، اجتماع بھیڑ جمع کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اجتماع سے مقصد یہ ہے کہ عمومی طور پر دین پر چلنے کی فضا بنے، دین پر چلنے کا شوق پیدا ہو۔ اجتماع میں آنے کا مقصد ہم سب کی اصلاح اور تربیت ہے، ہمارا تعلق اللہ سے جڑے، ہماری زندگی سنت اور شریعت کی پابندی والی بنے۔ اب وہ خطے وار جماعت میں اللہ نے ہمیں پہنچایا ہے۔ خطے وار جماعت کا کام کیا ہے؟ خطے وار جماعتیں ہر سال بنتی ہیں، خطے وار جماعتیں ہر سال ہر ایک کا کام الگ الگ سپرد ہوتا ہے، لیکن اکثر بڑوں کی طرف سے شکایت ہوتی ہے کہ خطے وار جماعتیں کام نہیں کرتی، صرف پیپر پر ہوتی ہے۔ اتنے ساتھی خطے وار جماعت کے سب بھی صحیح نہیں کرتا ہمارے ساتھ۔ جب بیان شروع ہو تو مجمع جوڑنے کے لیے خطے وار ساتھی حاضر نہیں ہوتے، آدھا پونا گھنٹہ مجمع جوڑنے میں لگ جاتا ہے۔ اجتماعی اعمال کے وقت ہمارے ساتھی مجمع کو اجتماعی اعمال میں جوڑے۔ دیکھو اجتماع میں آنے والا سارا مجمع جماعت میں نہیں جائے گا، 2-5% لوگ جماعت میں جائیں گے، باقی 90-95% مجمع تو واپس گھر جائے گا۔ تو آنے والا مجمع جو ہے اجتماع کی مجلس میں یہاں آ کر گھر جب واپس جائے تو کچھ فکروں کو لے کر جائے، کچھ عزائم، کچھ ارادے لے کر جائے، زندگی کو بدلنے کے نیتوں کے ساتھ مجمع گھر واپس جائے۔ اس کا آدھار جو ہے نا یہ مجمع پر ہے کہ آنے والا مجمع کیا لے کر جائے گا، اس کا ڈیپینڈ یہ مجمع پر ہے۔ یہ مجمع کی فکر ان آنے والے مجمع میں منتقل ہوگی۔ جو ہمارا مجمع بیٹھا ہے ان کی فکریں آنے والے مجمع کے اندر منتقل ہوگی۔ اس لیے ہمارا کھانا بھی اگر ایک وقت کم ہو جائے گا تو چل جائے گا، لیکن ہمارے ساتھیوں کا جو کام کے لیے ہمیں جمع کیا ہے اس کام میں ہمارا وقت لگنا چاہیے۔ اجتماعی عمل کے وقت مجمع کو اجتماعی عمل میں جوڑنے کی فکر کرنا۔ اجتماعی عمل کے علاوہ جو انفرادی وقت ہے، ان انفرادی وقت کو ہمارے ساتھی عام طور پر اپنے جو مزاج کے جو ساتھی اپنے دوست ہیں ان کے ساتھ بیٹھے رہتے، ہنسی مذاق باتیں ادھر ادھر کی ہو رہی۔ اس کے وجہ آنے والا جو نیا مجمع ہے ان نیا مجموعوں کے ساتھ اختلاط کرے، جن کی ملاقات کے لیے ہمیں کتنا وقت نکالنا پڑتا تھا، کتنی بار بار جانا پڑتا تھا، آج جو مجمع طلب کے ساتھ یہاں پر آیا ہے تو ہمارے ساتھی انفرادہ میں لے کے بیٹھے، ذہن سازی کرے، ان کو اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے تیار کرے، ابھارے۔ ضروری نہیں کہ یہاں سے چلا جائے جماعت میں، لیکن کم سے کم عزائم و ارادہ کرے کہ انشاءاللہ مجھے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے، اللہ کے راستے وقت لگانے کے لیے مجھے ترتیب بنانا ہے۔ اس کو مقامی کام میں جوڑنے کے بارے میں فکر، نمازوں کی پابندی کی فکر، گھروں میں تعلیم کرنے کے بارے میں فکر، موقع ایسا ہو تو سیکھنا سکھانا ہو۔
تو انفرادی وقتوں کے اندر آنے والے مجمع کے ساتھ اختلاط کرنا، بعدین کی باتوں کا مذاکرہ کرنا، قرآن کی آیت کا خلاصہ مفہوم ہے کہ دین کی باتوں کا مذاکرہ کرنا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ بار بار آپس میں چرچا، جو بیان میں باتیں ہم نے سنی ہیں، ظاہر ہے ساری باتیں تو یاد نہیں رہتی ہے، لیکن جب آپس میں مذاکرے ہو گئے تو باتوں میں پھر وہ بات واپس جب ایک بار دو بار تین بار دہرائی جائے گی تو پھر وہ باتیں ذہن نشین ہو جائے گی، دماغ میں فٹ ہو جائے گی۔ جب باتیں دماغ میں ہوگی تو زندگی میں پھر عمل میں آئے گی۔ کیا بات کی وہ پتہ ہی نہیں، یاد ہی نہیں رہا، تو عمل میں کیا کریں گے؟ تو باتوں کو زندگی میں عمل میں لانے کے لیے بار بار اس کا چرچا کرنا پڑے گا، اس کا مذاکرہ کرنا پڑے گا۔ تو اب ہماری آپس کی مجلس میں یہی بات ہو، مولانا نے بات میں کیا کہا تھا، اب جس کو جو بات یاد ہو وہ دوہرائے، ذہن نشین ہو جائے۔ صبح سے شام تک ہمارے آپس کی مجلس میں یہی باتوں کے چرچے ہو۔ آنے والے مجمع کا ہم اکرام کریں، ہم میزبان ہیں، آنے والا مجمع مہمان ہے۔ استنجا کھانے میں، وضو کھانے میں، سونے میں، کھانے پینے میں، ہر جگہ پر اکرام کریں، کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اگر ہم لیٹ کھائیں گے، استنجا میں، پانی، وضو میں، ہر جگہ پر کچھ ہماری دیری ہو جائے تو کچھ فرق نہیں پڑے، اکرام ہے۔ اکرام کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، خدمت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، خدمت کرنے والے پوری جماعت کے سردار ہیں۔ تو ہمارے عمل سے آنے والا مجمع کچھ اثر لے کر جائے۔ ہر ایک کے اندر خدمت کا شوق ہونا چاہیے، خدمت اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، اور وہ بھی اللہ کی نسبت پر آئے ہوئے لوگوں کی خدمت کرنا۔ ایک سفر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا ایک جگہ پر، ہاں بتاؤ چوکیداری رات کو کون کرے گا؟ ایک صحابی انس بن نبی مرثد رضی اللہ عنہ کھڑے کیا رسول اللہ میں کروں۔ کہاں؟ یہ جو پہاڑی نظر آ رہی ہے پہاڑی کی ٹوچ پر چلے جاؤں اور پوری رات چوکنا رہنا، کہیں ایسا نہ ہو آپ کی غفلت کی وجہ سے ہم دشمن کے دھوکے میں آ جائیں، یہ دشمن ہم پر حملہ کر دے گا۔ انس رضی اللہ عنہ چلے گئے۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، سلام پھیرا، اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ آئے۔ کارگزاری پوچھی، حضرت انس رضی اللہ عنہ گیا، رسول اللہ پوری رات گھوڑے پر سوار تھا، صرف استنجے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے اترا تھا، تاکہ پوری رات گھوڑے پر سوار ہو کے میں نے پہاڑی کی ساری گھاٹیوں میں دیکھ لیا کوئی دشمن کا آدمی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خلاف کا مفہوم یہ ہے کہ انس اگر یہ رات تمہاری قبول ہو گئی تو زندگی میں آپ دوسرے کو عمل نہیں کرو گے تو تمہاری رات تمہارے لیے کافی ہے۔ تو اللہ کے راستے میں نکلے لوگوں کی چوکیداری، اب رات میں کسی کا موبائل چلا گیا، رات میں کسی کو کوئی پیسے چلے گئے تو اس کی ذمہ داری ہمارے پر ہے کہ ہمارے ذمہ چوکیداری کر رہا آنے والے مجمع کی، چوکنا رہے ہم۔ جس کی چوکیداری کی ذمہ داری ہے وہ یہ نہیں آتے احمد نکی کرنا نہیں، ذمہ داری ہے۔ جس کی جو ذمہ داری ہے چوکیداری کی، وہ رات کو جاگے، اور یہ نہیں کہ بیٹھے بیٹھے ہم باتیں کر رہے ہیں کہ ہم جا کے دوسروں کو ہمارے ذریعے ڈسٹرب نہ ہو، کوئی پریشان نہ ہو، کسی کی نیند میں خلل نہ ہو، ذکر کرے، قرآن پڑھے اور جھاگتے رہے کہ کسی کا کوئی جانی مالی نقصان نہ ہو۔ ذمہ داری کا احساس پہلے
अमान में वो किस्सा नहीं, एक सहाबी, एक मुहाजिर एक अंसार सहाबी को चौकीदारी पे रखा है। पहले एक अंसारी कब आ रहा है, मुहाजिर सो गए, अपने दोनों जागेंगे तो हो सकते है आंख लग जावे, तो एक जागे एक सो जावे। तो अंसारी सहाबी जाग रहे और नमाज पढ़ रहे, दुश्मन की तरफ से एक तीर आया, जिस्म में लग गया, खून निकल रहा है, नमाज चालू है, दूसरा तीर आया, तीसरा तीर आया, और नमाज पूरी करके अपने साथी को जगाया, तो एक की जगह दो देख के भाग गया। वो मुहाजिर के ओहो इतना आपको खून, आपको जगाया नहीं? कहा मैंने नमाज में सूरह कहफ शुरू कर रखी थी, मेरा दिल नहीं चाहता था कि उसको पूरी किए बगैर मैं रुकू सिजदा करूं। अगर जिम्मेदारी का एहसास ना होता तो मैं अपनी जान दे देता, लेकिन सूरत पूरी होने से पहले रुकू नहीं करता। उनको नमाज पढ़ने में इतनी लज्जत आती थी, उनको नमाज पढ़ने में इतना मजा आ जाता कि जान चली जाए तो कोई हर्ज नहीं, इसमें जो मजा है वो जान जावे तो भी उससे ज्यादा मजा ये कुरान पढ़ने में, नमाज पढ़ने में। लेकिन ये मजा और लज्जत अल्लाह के साथ बातचीत करने की, ये इसलिए छोड़ा, जिम्मेदारी का एहसास था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिम्मेदारी सौंपी है, ये जिम्मेदारी में कोई चूक ना हो जाए, ये एहसास की वजह से मैंने रुकू किया। तो हमारे साथी इसके बारे में राय मशवरा दे कि हमारी खित्तेवार जमातें काबू में आवे, एक्टिव रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए, सोचे हम अभी राय दे, इसके लिए अपने मुजागरा थोड़ा कर ले। हर साल खित्तेवार जमात बनती है, लेकिन सिर्फ पेन कागज पर हो जाए। राय दे क्या करना चाहिए इसके लिए? उस्मान, मस्जिद उस्मान वाले बताओ, उस्मानी जोन वाले बताओ, राय दो, तारापुर वाले राय दो, गंजरी वाले राय दो, जिसको भी समझ में आता हो क्या करना चाहिए कि हमारी खित्तेवार जमात काबू में रहे। मोगल जन वाले क्या रहे आपकी? तो पूरे आने वाले मजमे का वक्त सही लगी, उसका आधार हमारे पर है। बताओ राय दो क्या करना चाहिए? मुनीर भाई, मास्टर क्या क्या करना चाहिए? 5 કલાક બેવ કે अभी जान समझ दे में दी आ रहा है लेकिन कि सो मसाला रहे नहीं हो? छोड़ा, जान दे दी लेकिन मसाला नहीं छोड़ा। हैं? તમારી કારગુજારી એવી છે। भाई हमारी खित्तेवार जमातें जो है हर साल तय होती है, सुनो मेरी बात ध्यान से, બોટલી લઈ हर લાયા साल છે દૂધની। खित्तेवार जमात तय होती है, लेकिन काम कुछ भी नहीं होता, सब सही करने के लिए भी कोई साथी नहीं होता है। मजमा बयान हो, आधा पौना घंटा जमा करने वाला पुकार पुकार के थक जाता है, लेकिन मजमा जमा नहीं होता है, मजमा अपनी जगह से उठता કોલ नहीं है, કરતા પાર में तो कोई जोड़ने वाला ही नहीं होता है। नमाज के लिए सफे खड़ी होती है तो सफे टेढ़ी होते हैं, लेकिन कोई सुझाव नहीं करता। नमाज बयान खत्म हो जब तस्कीर होती है, तो हमारे मजमे का काम यह है कि मजमे के अंदर घुस कर उनकी हिम्मत अफजाई करके उनको समझा के उनको खड़ा करे, कोई समझाने वाला नहीं होता। इंफरादी के अंदर आने वाले मजमू को लेकर बैठना, उनके साथ मुजागरा करना, ये नहीं होता है। चौकीदारी में रात को कोई चौकीदारी के लिए नहीं होता है, उसको कागज पर होता है, उसको काबू में लाने के लिए अमली तौर पर ये सारे अमल जिंदा हो, इसके लिए क्या करना चाहिए, राय दो। सलमान आप राय दो क्या करना चाहिए? हम्म
ખિત્તે और जमात बनेली છે એ જમાત પહેલા એક આરાની અંદર રહેવાની ફિકર કરે એ તંગર રહેશે તો ઇન્શાલ્લાહ આ બધી ફિકર આ બધા મુજાગરા વતરમો જે છે સરપ્યો પછી જે સરપ્યો આવશે એમનો અમે આ વાત નહીં હોય એટલા માટે એ સરપ્યો આવે પછી અમને બી ફિકરમંદ કરે અને એ પોતાની તરતીબ બનાવે જે આપણે બરોબર મજૂરો થાય છે એની ફિકર કરવામાં આવે भाई समझ में आया? सबने सुना भाई? बोर्ड वाला आवाज आई उनकी? बोलो। फारूक भाई की राय है कि भाई जो सलमान भाई की राय थी कि जो खित्ता हमको दिया है वो खित्ते वाला जो दूसरी खित्ते में रहे, अपना जरूरत भी इज्तिमाई तौर पर साथ में पूरा करे, खाना पीना चाहे नाश्ता सब। फारूक भाई की राय है कि भाई खित्तेवार जमात के साथी मजलिस खत्म होने के बाद वो फिर मुजागरा वापस बार बार करते रहे, अपनी जिम्मेदारी को बार बार दोहराते रहे। और क्या है शेख आपकी? मेरा ये ऐसी है कि जो अपना खित्ता दिया हुआ है वो खित्ते में हर वक्त कम से कम 10 से 15 साथी खित्ते और जमात के होने चाहिए 24 घंटे, यानी 10 तक रहे, अपनी जरूरत से कहीं जावे वो। और दूसरी बात के मजलिस से खत्म होने के बाद कुछ एक ऐसा टाइम लेके पूरे खित्ते और जमात को रोजाना 2 दिन 3 दिन जब तक भी है वहां तक उनको फिक्र दिला जोड़ के। नहीं, खित्ते व जमात के साथ जो खित्ता दिया उसमें सारी जमात तो वहीं ठहरेगी, लेकिन जरूरत से फारिग होने जावे तो सब साथी ना चले जावे। शरीफ भाई का कहना मतलब ये है, सब साथी एक साथ में ना जावे, बारी बारी जावे, ताकि खित्ते में वो साथी मौजूद रहे। और वही कि बार बार मुजागरा साथियों के सामने होना चाहिए। जी राज भाई, जमात जितनी भी उनको फिक्रमंद करने के लिए जमात बना दिया जाए, पूरे दिन में 2-3 मरतबा वो जमात उनको फिक्रमंद करे कि अपने खित्ते में जाती, इसमें मजबूर जमात बना दिया जाए, क्या जमात को फिक्रमंद करे बार बार सारा काम में आ जाए। और भी तौसीफ वो जमात मजमा जोड़ने वाली बने और जो जमात सबको को सही करने वाली बने, उनकी नमाज अलग हो। तो बात क्या होती है कि जिसको मजमा जोड़ना है सब सही करा उसको भी नमाज तो पढ़नी है, अगर वो सब सही करा तो उसकी रकात चली जाती है, अब वो नमाज मानते ना तो सबकी सही नहीं होती है। तो मजमा जोड़ने वाली जमात और वो जमात सब सही करने वाली नमाज अलग और हर नमाज के बाद में कितनी बार जमात टूट जावे और कारगुजारी ले। मैं बोला आप हमारी कितना जमात में क्या काम हुआ राय हमद मौत जमात को लेकर बैठे और हर 10 साथी के ऊपर एक जिम्मेदार बना और वक्तन फवक्तन माशाल्लाह जी। जमात अपनी जो जमातें बनती है ना तो जमातें बिस्तर लेके वहाँ रहती भी है यकसुई के साथ। तो हमने जो 3 दिन के जो जोन दिए हैं ना, मसलन चांगा को तारापुर दिया है तो हमारे साथी तारापुर की किस्तर जमात वो जगह दी जाए, अगर वो किस्ता दिया जाएगा तो रसूल भी होता रहेगा ना और वो लोग चांगा जोन में रहे। ऐसे बिस्मिल्लाह जोन इस्लामपुरा है तो वो लोग इस्लामपुरा के किस्तर में रहे इंशाल्लाह रसूल के एतबार से माशाल्लाह। और भी सारी तरकीब तो बनी जाती है, सारी चीजों को दिलाई जाती है, वो मजमा तय करे काम करना है वो जिम्मेदारी से अगर फिक्र के साथ करते हैं तो तरतीब बनाने की जरूरत नहीं, बनाना अगर फिक्रमंद नहीं होगा तो कोई काम नहीं। लेकिन ये मजमा तय करे मजमा को जोड़ना है, ये जोड़ने की जिम्मेदारी नहीं है, तुम जब तरतीब बनाओ सबको जोड़ो। अक्सर मरतबा इस्तेमा की जब मजलिस लगती है ना 4 साथी होते हैं, मुश्किल से वो 2 साथियों को मैं ले जाता हूँ तो आते, अरे भाई तुम यहाँ बैठे हो मजमा पीछे बैठा है चलो जोड़े, तो वो मजमा उठने के लिए बयान छोड़कर मजमा छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं होता। पूरे मजमे में पीछे इधर उधर लोग बैठे हैं, कोई बुलाने के लिए तैयार नहीं, मजमा अपना बैठ जाता है आगे। तो यही मजमा अगर तय कर लेता है
वो इसकी फिक्र करे। और भाई, और किसी के जहन में कोई बात आ रही है? अजी मोहसिन, इलियास भाई, राज भाई, तारापुर के साथी की कोई राय है? मुगल जवान, कंजरी वाला कोई नहीं साथी? कंजरी એટલેજ કાકા મોમાને જ ઊભું થવું પડે. बताओ, और किसी के जेल में रहा आके तो जकरिया मस्जिद के साथी बताओ, इनामी जवान के साथी। एक हमारा हर अमल जो है ना इबादत है। मुसलमान का हर अमल इबादत है। ये हमारा इज्तिमा जो है ना मेले की शक्ल न बन जाए, एक रूटीन न बन जाए। इज्तिमा आ गए, खा पी के घूम फिर के चले गए मजमा। एक इज्तिमा में आने वाला मजमा इतनी भी फिक्र लेके ना जावे कि दूसरे दिन कम से कम वो फजर की नमाज में हाजिर रहे। मैं कह रहा हूँ, इज्तिमा में आया वो मजमा दूसरे दिन फजर की नमाज भी ना पढ़े तो क्या मतलब? इज्तिमा से उसको क्या फायदा हुआ? फर्ज फर्ज चीज है। ईमान के बाद सबसे बड़ा फर्ज 5 वक्त की नमाज की पाबंदी है। कुफ्र और शिर्क के बाद जमीन पर सबसे बड़ा गुनाह नमाज छोड़ना है। चोरी करने से बड़ा गुनाह नमाज छोड़ना है। जिना करने से बड़ा गुनाह नमाज छोड़ना है। शराब पीने से ज्यादा बड़ा गुनाह नमाज छोड़ना है। किसी को कत्ल करने से ज्यादा बड़ा गुनाह नमाज छोड़ना है। आने वाला मजमा कम से कम 5 वक्त की नमाज पर भी ना आवे। इज्तिमा में 2 दिन 3 दिन रहा और खत्म होने के बाद मंगलवार दुआ हुई, बुध के दिन फजर में भी नहीं है, तो क्या क्या फायदा इज्तिमा से? इतना लाखों का खर्चा करके फायदा क्या? उसकी कुसवा दोस्त हम हैं। ये मजमा फिक्र ले ले। तो बात तो दिन की 24 घंटे ये कर लेंगे। 1400 साल से जो बातें कर रही वही करने की, नई कोई बातें करने की नहीं है। लेकिन बार बार मुजागरा जो है ना, बार बार मुजागरा, एक बात का बार बार मुजागरा होता है, आदमी की दिल बात भी उतर जाती है। झूठ बात झूठ, बार बार आदमी सुनेगा ना तो भी उसको सच मान लेगा। ये तो हक बात है। जब हक बात का मुजागरा बार 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 होगा, आदमी के अंदर उतर जाएगा वो। इसके इंफरादी में भी साथी बार बार मुजागरा करते रहे, साथियों में भी आपस में। मजलिस खत्म होने के बाद अपने साथियों की इत्तेफाक जमात के साथियों को जोड़े। बताओ किसने कितने लोगों को दावत दी, कितने लोगों को दावत, कितने लोगों को समझाया? भाई जिसकी ये जिम्मेदारी जो उसको पहले से याद देना ही कर दे। भाई तुम्हारी चौकीदारी की, तुम्हारी ये सफों की जिम्मेदारी है, तुम्हारा मजमा जोड़ने की जिम्मेदारी। बार बार याद दहानी करता कि आदमी अपनी जिम्मेदारी भूल नहीं जाए। इंसान है, इंसान की फितरत में अल्लाह ताला ने गफलत रखी है, भूल जाता है, तो याद दहानी करे बार बार। तो इसके लिए दोस्त बुजुर्गों, हमारे साथी इसके बारे में सोचे अभी भी, है ना। 10 बजे मजलिस होगी तो उस वक्त जो पूरी तरतीब बनाना है। उस वक्त अगर किसी साथी के जहन में बात आती है तो उस वक्त कुछ तरतीब सोच लेंगे। लेकिन इतना तो तय कर लेंगे, ये मजमा जो है कि हमें पूरी फिक्र और पूरी जिम्मेदारी के साथ इज्तिमा को कामयाब बनाने की मेहनत करना है। इंशाअल्लाह सब नियत करते हैं इंशाअल्लाह। दो तकरीबन 80 दिन की मेहनत है, जोनों में जमातें चली है। हम सब साथी ने, हमारे सारे मजमे ने अपनी मस्जिदों में लोगों को इज्तिमा की दावतें दी है। बाजारों में जाकर, टैक्स स्टैंड जाकर, रिक्शा स्टैंड जाकर लोगों को दावत दी है इज्तिमा के उन्वान पर। अब इतना मजमा इज्तिमा के उन्वान पर आ रहा है तो इनका वक्त, उनके पैसे हमारे लिए अमानत है।
20-25 हज़ार का मजमा दोस्तों आएगा। हर आदमी अपना कारोबार बंद करके आएगा। कोई 100 कमाते, कोई 500, कोई 1000, कोई 5000 कमाता है, वो अपना कमाना छोड़ के आएगा। यहाँ के 100, 200, 500 खर्च करेगा, उसका आने जाने का भाड़ो किराया होगा। इतना पैसा लगने के बाद लाखों रुपये का इन्वेस्ट होगा यहाँ पर, लाखों रुपया लोगों का खर्चा होगा। और इज्तिमा के अंदर हमारे ये जो पिंडाल बांधना और सारे इंतजाम करने में लाखों रुपया का खर्चा होता है। इन सारे लाखों रुपये का खर्चा और लोगों का वक्त, ये सारा कुछ लगने के बाद दोस्त मुझे मजमा कोरा जावे, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी की भी नियत लेकर ना जावे, ये नहीं होना चाहिए। हम सब अपने दुनिया के मामला में इतने चौकन्ना है। एक आदमी 50 लाख का इन्वेस्टमेंट किया हो धंधे में और महीने में 2-5 हजार रुपया उसको नफा मिलता हो ना, तो वो फिक्रमंद हो जाता है। लट्टू मोटू में इन्वेस्टमेंट करो, 2-5 हजार रुपया नफा माने जाता है। हमारा कितने लोगों से मशवरा करेगा, टेंशन में आ जाएगा वो। हम दीन की निस्बत पर लोग, उम्मत का लाखों का माल लग रहा हो, हजारों का वक्त लग रहा हो, लोग धंधा कारोबार बीवी बच्चे छोड़कर अपनी जरूरतों को कुर्बान करके दोस्तों मजमा यहाँ आ रहा हो और उनका वक्त जाया हो जावे, बेकार चला जावे, कुछ लेकर ना जावे मजमा, ये नहीं होना चाहिए। जिम्मेदारी हम सब की दोस्त, आने वाले मजमे का वक्त और उनका पैसे अमानत है। क़यामत के दिन हमारी पूछ होगी दोस्तों। अल्लाह ने हमें जिम्मेदार बनाया, इसके लिए अमानतदारी के साथ जिसकी जो जिम्मेदारी है, खाना पीना सोना आराम तो दोस्तों जिंदगी भर होता है, घर पर भी होता है। यहाँ थकना है, 3 दिन अपने आप को थकाना है, आराम करने के लिए हम नहीं आए, अपने आप को थकाना है। इंशाअल्लाह दीन की निस्बत पर जितना अपने जिस्म को थकाएंगे, कब्र में अल्लाह ताला आराम से सुलाएगा दोस्तों। हाँ, मुसलमान की नींद तो कब्र की मिट्टी पूरी करेगी, ऐसे अल्लाह सुलाएंगे, जिंदगी पर कभी फिर नींद नहीं आएगी। ऐसे हमेशा की अल्लाह ताला नींद खत्म कर देंगे, ऐसे कब्र में अल्लाह सुलाएगा इंशाअल्लाह हमको। बस अल्लाह की निस्बत तो थकना है। मौलाना रहमतुल्लाह अलैह की जब इंतकाल हुआ और उनका जनाजा जब निजामुद्दीन में लाया गया, तो उनकी अम्मा ने उनके चेहरे पर से पर्दा उठा के कहा, बेटा यूसुफ सो जा, सो जा, आराम से सो जा, जिंदगी में बहुत रातें तूने चैन से नहीं सोया, आराम से सो जा। 16, 18 घंटे ईमान बोलते थे, जिंदगी अपनी खपा दी थी। एक मर्तबा मौलाना मंजूर साहब नौमानी रहमतुल्लाह अलैह उनके अहलिया के साथ उनके घर आए, उनकी अहलिया घर में गई, मौलाना मंजूर साहब मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह के साथ मस्जिद में गए। तो कुछ देर के बाद मौलाना मंजूर साहब की अहलिया ने मौलाना मंजूर साहब को बुलाया और कहा कि मौलाना यूसुफ से पूछो कि उनकी अहलिया से नाराज हो गए क्या, 6 महीने से घर में नहीं आए। हालांकि एक ही दीवार है, मस्जिद और घर, बीच में दीवार है, बस कोई लंबा चौड़ा वक्फा नहीं है, एक दीवार है, 6 महीने से घर नहीं है। मौलाना मंजूर साहब ने मौलाना यूसुफ साहब से बात की। मौलाना यूसुफ ने कहा, मुझे पता ही नहीं चला कि 6 महीने हो गए। सीधे घर गए और अपने बीवी से माफी मांगी कि अल्लाह की बंदी मुझे माफ कर देना, मुझे पता ही नहीं चला मशगूली के अंदर कि तुझसे मिले 6 महीने हो गए। दोस्तों ऐसे अपना को थकाया है। अपने जो बड़े बूढ़े पूछो उनसे, जब गुजरात के इज्तिमा होते थे, उन इज्तिमा मजमा पहुंचता था, कैसी फिक्रें लेके वापस आता था। मजमा 3 दिन के इज्तिमा में जिंदगी बदलने की नियत के साथ वापस आता था। हाँ, 3 दिन में इज्तिमा में पहुंचा जिंदगी बदलने की नियत के साथ, क्या पूरी जिंदगी बदल देना है। ऐसे हजारों का मजमा है जिन्होंने 3 दिन के इज्तिमा में अपनी जिंदगी को बदलने के इरादे और अज़ाइम किए हैं। इसके लिए हमारी फिक्रें खाने की,
सोने की, अपनी जरूरत को पूरी करने की हमारी यही हर वक्त फिक्र हो, तो फिर आने वाले मजमू की तो और ज्यादा वही फिक्र होगी। जैसे भाई साहब ने बताया ना कि हुजूर से 2 पत्थर बांधे तो आने सहाबा ने 1 पत्थर बांधा। हमारी जो फिक्र होगी वो आने वाले मजमे में मुंतकिल होगी। इसके लिए तय करें इंशाल्लाह ये मजमा कि आने वाले मजमे का वक्त सही लगे, उसकी इंशाल्लाह हम फिक्र करेंगे। इंशाल्लाह आने वाला मजमा कुछ लेकर जाओ, उसकी हम इंशाल्लाह फिक्र करेंगे। हाँ, आने वाला मजमा फिक्रों के साथ अपने घर वापस लौटना चाहिए, कुछ लेकर जाना चाहिए। ये मजमे के अंदर एक कुड़न और फिक्र होनी चाहिए, बेचैनी होनी चाहिए, बेचैनी होनी चाहिए। जिस घर में प्रसंग होता है शादी का, तो घर का जो आदमी होता है ना, उसको तो ना खाने की फिक्र होती है, ना पानी की फिक्र होती है, ना सोने की फिक्र होती है। क्यों? दिमाग पर फिक्र सवार है कि घरनो प्रसंग है, आपको पूरा है, बस बेचैनी होती है उसको। ये हमारा घर का प्रसंग है। हर साथी એવું ના સમજે કે આપણો છે, મારો પ્રસંગ એવું સમજે। આ ઇસ્તીમાં મારો છે ये समझे। जाने वाला मजमा सारा ये मेरा मेहमान है, उनको जरूरत में वो कोई तकलीफ ना पड़े, और आने वाला मजमे को खाने में, पीने में, सोने में, आराम में, हर चीज में सहूलत हो। आने वाला मजमा कुछ लेकर जावे, कुछ अजायम और इरादे लेकर जावे, जिंदगी बदलने के इरादे के साथ वापस घर जावे। जरूरी हर आदमी जमात में चला जावे, लेकिन घर जाने वाला भी नमाज की पाबंदी की नीयत लेकर जावे। रोजाना घर में अब तो इंशाल्लाह मुझे तालीम करना, इरादा लेकर जावे। अब कितने वर्षों से घर की तालीम के मुजाकर हो रहे, हम कितने वर्षों से सुन रहे, लेकिन हमारे मोहल्ले में घरों की तालीम कितनी है सोचिए। और घर में हो रही तो कैसी हो रही है तालीम? घर की तालीम कोई फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए नहीं है, घर की तालीम बरकत के लिए नहीं है कि चलो घर में तालीम हो रही है। कारगुजारी सुनाने के लिए घर की तालीम नहीं है, गणतरी करने ना पूछे मस्जिद वाले तो कहने के लिए नहीं है, बल्कि घर की तालीम का मकसद जो है घर वालों की तरबियत है। हम वक्त निकाल कर रोजाना अपने घर में तालीम खुद करें, खुद करें। एक तो घर में औरतें तालीम कर रहे हो, मैं कहती तालीम करे, मैं छोकरी तालीम करे, मैं छोकरो तालीम करे, ठीक है, बरकत के तौर पर हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि फजाइल की किताब में, ये प्योर यूपी की उर्दू है, 4-4 महीने लगे साथियों को बहुत सारी बातें पता नहीं चलती है, तो घर की औरतों को क्या पता चलेगा? वो तालीम कर ली, लेकिन पढ़ने वालों को भी खबर नहीं क्या पढ़ा, ना सुनने वालों को खबर नहीं क्या पढ़ा। अब पूछो जाके एक मर्तबा घर में तालीम हो जाए, क्या पढ़ा घर में तालीम, पता भी नहीं होगा। अब क्या पढ़ा वो पता नहीं, तो अमल में क्या आएगा फिर? तो हम खुद बैठ के तालीम करेंगे ना, तो एक तो वो पहली चीज घर वाले के अंदर अहमियत आएगी। हम बैठेंगे तो, हम लेके बैठेंगे तो घर वालों को अंदर तालीम की अहमियत आएगी। और फिर तालीम करने के बाद जो पढ़े उसको फिर अपनी भाषा में समझावे, ये पढ़ा गया, उसमें हमें ये अमल करना है, ये करना है, अपनी भाषा में समझाना। तो रोजाना पाबंदी के साथ जब अपने घर में तालीम का मुजावरा होगा, धीरे धीरे घर का माहौल बनेगा। आज दोस्त बुजुर्गों, हमारे घर की औरतें और हमारे घर के बच्चे दीन से बेजार है, बेजार, दीन पर चलना पसंद नहीं करते। वजह क्या है उसकी? दीनदार घरों में बच्चे दीन से बेजार हो। एक तो बेदीन घर वो तो समझे, लेकिन दीनदार घरों के बच्चे दीन से बेजार हो, दीन से दूर भाग रहे हो। कौन सा वीक पॉइंट है हमारा, कौन सा लीकेज है, कौन सा लीकेज है? सुनो, सोचो। हम दीनदार बच्चों के घराने के अंदर दीन पर चलने का शौक होना चाहिए। कुछ कमी है, कुछ फॉल्ट है हमारा, कोई लीकेज है कि मुजाकरा मजमे के सामने होना चाहिए। घर की तालीम की अहम लेकर जाओ मजमा।
अल्लाह के रास्ते वक्त लगाने के इरादे लेकर वापस जाओ कि अभी तो मैं नहीं जा सकता इसमें, लेकिन महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 5 महीने के बाद इंशाल्लाह मुझे चीला लगाना है, 4 महीने लगाना है। और जब तक इंशाल्लाह चीला 4 बार नहीं जाऊंगा, हर महीने तो 1 दिन जरूर लगाऊंगा। इरादे आ जाएंगे कि साथ मजमा वापस जाना चाहिए। तो सब करेंगे मैं इंशाल्लाह। क्या करना है इधर? દિનની બેજાર નહીં થાય તને શું વાપરે છે ઊંઘ આવે છે તારે ગીત તો 24 કલાક હાથે આવશે શું करने वाले बच जाए कहते कहते કેટલા થયા 35 થયા તું કેટલું વાપરીશ ખબર છે 35 થી તો વપરાશ બાબા सुनते सुनते करने वाले बच जाए હા और बोलते 35 बोलते થયા हमारे मिला दिए ડુંગળી જાય મેળવી પડે બોલતો બોલતો ના વેચાઈ જાય તો 2 કટ્ટા મેળવા પડે અરે ત્યાં પીને ઊભો થઈ જાય થોડું ગ્રાહક આવે तो रोजी વાહ બાપાની કીધો હા એ વખત ઉપર હતો કે બધી પાકો ઉપર હતો